function fxy. So fxy, it is a function of two variable. तो ਅਸੀਂ डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं. कोई भी फंक्शन, a function fxy with the domain df is said to be differentiable at AB belongs to domain of f if in neighborhood of AB it can be expressed as या represented as. सो आ ध्यान नाल याद रखना f of a plus h comma b plus h which is equal to f of ab h into fx ab plus k into fy ab plus h epsilon 1 and epsilon 2. So these values and this epsilon 1 and epsilon 2, it approaches to 0 as hk approaches to 0. ਜਿੱਦਾਂ h ਤੇ k 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ epsilon 1 ਤੇ epsilon 2 ਅਗਰ ਕਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦਿਸ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦਿਸ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ. ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਇਨ ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ. ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਉਂਡਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. ਸੋ ਦਿਸ ਥਿਓਰਮ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. So this is helpful to check whether the function is continuous or not. ਇਹ ਦੋ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਸੋ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, prove that a function of this kind is not differentiable at origin. तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यूज होएगी. और दूजा, इट इज कंटिन्यूस एट ओरिजिन. भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ओरिजिन पर कंटिन्यूस है एंड बोथ fx and fy exist at origin and have value 0. तो इन्हां दे जेडे डेरिवेटिव आ वो एग्जिस्ट करते हैं और उन्हां दी वैल्यू किहदे बराबर आ, 0 के बराबर. सो इस क्वेश्चन च तीन पार्ट आ, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ते पार्शियल डेरिवेटिव. ये असी चेक करने, ठीक है जी. इहदे असी अगे करांगे. सो दिस जिहड़ा क्वेश्चन है ये एग्जाम दे विच तुहानू 2006 एंड 11 दे विच पुछया गया. सो दिस इज GNDU 2006 और PU च 2011 च पूछा गया. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है जी. सो सब तो पहला मैं फंक्शन की गल कर, मेरे को फंक्शन जिहड़ा दिता है दिस इज ऑफ दिस काइंड fxy which is a square root of modulus of xy, modulus of xy, और ये मैनू फंक्शन दिता. तो आपां पहला कंटिन्यूटी चेक कर लीए ओरिजिन दे विच, फिर असी इहदी पार्शियल डेरिवेटिव ले लवांगे.
फिर उस तो बाद असी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करांगे। सो फस्ट पार्ट च मैं कंटीन्यूटी चेक करन लगा। सो वट इज द कंटीन्यूटी? कंटीन्यूटी है कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ एक्स वाई ਇਹਦੀ वैल्यू अगर एफ 0 0 ਦੇ आ जाए बराबर तो कंटीन्यूस होंगी है। ठीक है जी। सो वट इज दिस वैल्यू इज लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 फंक्शन की वैल्यू पुट कर दईए। जो फंक्शन की वैल्यू पुट की तो एक्स भी 0 वाई भी 0 अप्रोच किया, ਇਹਦੀ वैल्यूज आ गई 0 और ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ f 0 0 फाइंड किया so this value is again 0 0 so it means limit x y approaches to 0 0 function f x y, this value is equal to f of 0 0 so it implies this function fxy. So what is this? It is a continuous at origin. तो मैं पहला पार्ट प्रूव कर लिया कि फंक्शन साडे कोल कंटीन्यूस होएगा ओरिजिन दे उत्ते। इज इट राइट एनीवन? ठीक है जी। सो पहला पार्ट मेरे को आ गया ओरिजिन दे उत्ते कंटीन्यूटी। उस तो बाद मैं चेक करना पार्शियल डेरिवेटिव। सो व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव? एफ एक्स 0 0। ठीक है। सो ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गए, इधर विद रिस्पेक्ट टू असी वाई करांगे। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स की आएंगे फार्मूला लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, एक्स लेना एक्स ले लो, एच अगर यूज करना असी एच करनी है। सो हियर एफ ऑफ एच के माइनस एफ ऑफ 0 0 ओवर एच। ठीक है। तो एच 0 आएगा, नॉट एच के, एच 0 माइनस एफ 0 0 इक्वल टू दिस। सो दिस वैल्यू इज लिमिट एच अप्रोचेस 0, वैल्यू पुट कर दो यदि वैल्यू पुट की 0 आएगी, अगले दी तो है ही 0 ओवर एच। तो पार्शियल डेरिवेटिव एट द पॉइंट 0 0 विद रिस्पेक्ट टू एक्स दी वैल्यूज आ गए 0। सेकंड एफ वाई एट द पॉइंट 0 0 चेक करिए। सो व्हाट इज दिस? अगेन लिमिट k approaches to 0 or this can be written as f0 k minus f of 0 0 over साढ़े को आ गया k। फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दईए, फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट की सो लिमिट k approaches to 0 0 minus 0 over k, so this value is equal to 0। तो पार्शियल डेरिवेटिव साडे कोल जेडे विद रिस्पेक्ट टू y भी ओरिजिन दे उत्ते फाइंड आउट कर ले, ओदी वैल्यूज भी कितनी आ गई? 0 आ गई। सो इट मीन्स कि साडे कोल पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स 0 0 ते एंड पार्शियल डेरिवेटिव y एट पॉइंट 0 0 ते इट बोथ एग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करते हैं एंड हैव 0 वैल्यूज और उन्हां दी वैल्यू जिहड़ी है वो साडे कोल कितनी हो जाती? 0 हो जाती। सो असी इस चीज नूं भी फाइंड आउट कर लिया। थर्ड आ गया डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिफरेंशिएबिलिटी दा मैं तुहानूं फार्मूला दस्सिया सी कि अगर असी ए बी दे उत्ते डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी तो की हुंदा ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के विच इज इक्वल टू
f of ab plus h fx at the point ab plus k fy partial derivative at the point ab plus h epsilon 1 plus k epsilon 2 where ਸਾਡੇ ਕੋਲ h ਤੱਕ k it approaches to 0 as epsilon 1 epsilon 2 approaches to 0 ठीक है जी ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਵੇ ਐਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ a b ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ 0 0 ਤੇ 0 0 ਤੇ ਬਣਿਆ 0 plus h यानी h comma k which is equal to f 0 0 plus h fx 0.00 plus k fy at the point 0 0 और प्लस साढ़े कोल h epsilon 1 plus k epsilon 2 ठीक है जी इट इम्प्लाइज वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए आ वैल्यूज बन गई मॉडुलस एच के फिर सारे दा स्केयर रूट अगली वैल्यूज ये वैल्यूज ये है 0 प्लस अगले दी वैल्यू h इंटू 0 क्योंकि ये भी पार्शियल डेरिवेटिव 0 है नेक्स्ट दी वैल्यू k इंटू 0 प्लस h epsilon 1 plus k epsilon 2 this values आ गई so simplify किया तो साढ़े को रह गया h epsilon 1 plus k epsilon 2 which is modulus of h k square root of साढ़े को this is a square root ਹੁਣ ਇੱਥੇ h ਤੇ k ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ h ਤੇ k ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ h ਐਂਡ k ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਈਏ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ can be written as बड़े ये है h into epsilon 1 तो इन्हों में लिख सकता h bar और this is square root of k by h this values and नाल आ गया modulus of this h form ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ h into this plus दूजा k into multiple होना चाहिए तो k into epsilon 2 लिख लिया सो दोनों ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ epsilon 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ this square root of modulus of k by h ਇਹ ਆਈ ਔਰ epsilon 2 ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਗਈ ਸੋ this is k into 0 ठीक है जी प्लस 0 लिख लिया सो k into 0 आ गया और दिस वैल्यूज आ गया हुण दोनों एक तो epsilon 1 और दूजा epsilon 2 ये दोनों 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ when h and k approaches to 0 ਸੋ epsilon 2 ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਬਟ epsilon 1 it does not approaches to 0 as h या k h approaches to 0 ठीक है क्योंकि ये इन्फिनिटी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ तो ये 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ so it means ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ so this function fxy it is not differentiable at origin तो जेड़े फंक्शन ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਉਹ फंक्शन कंटिन्यूस भी है origin ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहे
पर वो जिहड़ा फंक्शन है वो फंक्शन साडे कोल डिफरेंशिएबल नहीं है एट द पॉइंट ओरिजिन दे उत्ते। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ fxy which is equal to of this kind और ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ कि पार्शियल डेरिवेटिव इस फंक्शन दे एग्जिस्ट करते हैं बट f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट मेरे को फंक्शन क्या दिता है पहला तो आप फंक्शन नू समझिए एफ एक्स वाई सो विच इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दिस इज व्हेन एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0 ठीक है जी और ਇਹਦੀ वैल्यू 0 ਦੇ बराबर हो जाती है अगर एक्स वाई की वैल्यू साढ़े को 0 हो जाए दिस वैल्यू तो पहला मेरा काम की है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हैगा ओरिजिन दे उत्ते पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और नाल दे नाल ये साडे कोल डिफरेंशिएबल जिहड़ा है वो ओरिजिन दे उत्ते असीं चैक करना सो तीन चीज़ां साडे कोल आ गई ठीक है जी सो तिन्ने चीज़ां पहला कंटिन्यूटी नूं चैक करिए सो ऊपर डिग्री भी 2 है नीचे डिग्री भी 2 है ਇਹਦਾ मतलब फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होएगा सो असी लईए लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 along a y equal to mx ਇਹਦੇ along ਅਸੀਂ वैल्यू ਲੈ ਲਈਏ ठीक है जी ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि ਜਦੋਂ x ਦੀ वैल्यू 0 है ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ y ਦੀ वैल्यू भी 0 ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ मतलब ਇਹੀ ਹੈ तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं now this limit x y approaches to 0 0 this values f of x y वैल्यू पुट करिए सो ये रह गया लिमिट x approaches 0 f x y दी वैल्यू mx so this values आ गई so this is limit x approaches 0 इस फंक्शन च वैल्यू पुट करिए ऊपर आ गया एम एक्स स्क्वायर और नीचे मेरे को जेडी वैल्यूज है साढ़े को एक्स वाई ऊपर और नीचे वैल्यूज चेक करिए सो दिस वैल्यू विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस साढ़े को m square into x square so we get this value so from this what we get limit x approaches 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए ऊपर आ गया m एक x कैंसिल हो जाएगा ठीक है जी क्योंकि नीचे टर्म x स्क्वायर है तो दिस इज ऊपर आ गया mx और नीचे मेरे को आ गया 1 प्लस m स्क्वायर सो दिस वैल्यूज आ गई इस वैल्यू दे विच जदों असीं x दी लिमिट लई तो वो वैल्यू किहदे बराबर आ गई 0 दे सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 सो इट मीन दिस वैल्यू इज इक्वल टू f0 and 0 सो इहनूं असीं इस ढंग नाल भी प्रूव कर सकते हैं so what we get limit x y approaches to 0 0 f of x y which is equal to f of 0 0 and this value implies this function x y it is a continuous at origin ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾय डेफिनेशन भी ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तुसी उस
ढंग दे नाल भी प्रूव कर सकते, इस ढंग नाल भी कर सकते। तो कंटिन्यूटी चैक होगी इस फंक्शन की। हुण आपां चैक करिए पार्शियल डेरिवेटिव। सो फर्स्ट एफ एक्स at the point 0 0, so this value will become limit h approaches 0, so f of h comma 0 minus f of 0 0, और नीचे साढ़े को वैल्यूज आ गई h। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, लिमिट h approaches 0, this is 0 minus 0 over h, so this total term equal to 0। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कुछ नहीं किया, ਉਹਦੀ वैल्यू की 0 के बराबर आएगी। सिमिलरली एफ वाई एट द पॉइंट 0 0 चेक करिए। सो दिस इज ए लिमिट k approaches 0 and this value is f0 k minus f0 0 over k। So again limit k approaches 0, 0 minus 0 over k, so this is equal to 0। So what we get? We get partial derivative at the point 0 and partial derivative at the point 0, they exist and have 0 values। ठीक है जी, एग्जिस्ट भी कर गए और ओदी वैल्यूज 0 हो गई। तो थर्ड पॉइंट आ गया डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी किद्दां चेक करी दी, हुण तुसीं ओरिजिन दे उत्ते करनी है। सो एफ 0 प्लस एच 0 प्लस के which is equal to f 0 0 minus h f x 0 0 k f y 0 0 plus h epsilon 1 plus k epsilon 2। ठीक है जी, it implies f of h k f of 0 0 plus आना h f x 0 0 k f y 0 0 plus h epsilon 1 plus k epsilon 2। दिस आ गया। और where h k should be approaches to 0 as epsilon 1 epsilon 2 approaches to 0। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये बन गया एच के बटा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यदि वैल्यू 0 आ गई, ये आ गई एच इंटू 0, ये आ गया के इंटू 0, और दिस इज एच एप्सिलॉन 1 प्लस साडे कोल के एप्सिलॉन 2, के एप्सिलॉन 2 दिस आ गया। सो असी कोएफिशिएंट ऑफ एच ते कोएफिशिएंट ऑफ वाई जिहड़ा वो फाइंड आउट करना। ठीक है जी, तो असी के नू ले लीए पुट k is equal to mh।
ਜਿੱਦਾਂ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪੁੱਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਨਾ mx, ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ k ਨੂੰ ਅਸੀਂ mh ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ what we get mh square over h square plus m square h square, और इत्थे रह गया h epsilon 1 plus m h epsilon 2। ठीक है जी, सो ये बन गया साडे कोल h कॉमन 1 epsilon 1 plus epsilon 1 प्लस साडे कोल h epsilon 2। सो सिंपलीफाई करता epsilon 1 इंटू m epsilon 2। ठीक है जी, तो आ टर्म तो जीरो ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ h, ਔਰ ਇਹ h ਇਸ ਇੱਕ h ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ h ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਰਹਿ ਗਈ epsilon 1 m epsilon 2, so which is equal to m over 1 plus m square। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ਤਾਂ 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, राइट हैंड साइड ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ, so which has different values for different value of m। ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ this implies m by square root of m square, m by square root of m square ਇਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। so which is not possible, which is not possible। जे possible नहीं है तो this function is not differentiable at origin। तो साडे कोल कंटिन्यूस भी हो गया, बट ये फंक्शन ओरिजिन दे उत्ते डिफरेंशिएबल नहीं है।